Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Today we will start our first chapter, that is resource and development. Resource and development, we can divide it into various parts or lectures. First lecture is introduction to resource or definition of resource, and next uh, there is a classification of resource. After that there will be next lecture development of resource. Development of resource we will discuss about the planning of resource, how we can plan our resource. After that we can study about a land resource, their utilization, soil as a resource, as well as their classification. So in today's lecture, we will discuss, or we will start with the resource. Before moving to this topic, there are some questions which need to be answered. There are various issues regarding the resource which need to be explained, which need to be answered. Likewise, what is resource? What makes a particular thing uh, called a resource? How we can obtain a resource? Where do we extract resource? Where do we obtain resource? Why the countries they are fighting for the resource? These are some things which need to be discussed in the later lectures. So coming to the topic, resource. If we move on to this topic, there are many questions that need to be explained. First, if we look into our surroundings, in and around our surroundings, if we look carefully, there are many things which there are many things or many such items that makes your life comfortable, that gives you security, that gives you prosperity, that makes your life comfortable, or we can say you achieve all the objectives what you want or what you need. So if we look carefully in and around our home or in and around our surroundings, there are many things which you can see, by which your life becomes successful, by which you obtain your social objectives, all the social objectives which a person needs. He maintains his quality of life, he maintains the standard of life, uh, he also fulfills his basic needs which a common man can have. So moving forward, first we will see some definitions regarding the resource. What is a resource? Simply we can say that resource is anything which satisfies our needs, by which we anything by which we can satisfy our needs, or by which we can fulfill our needs. कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हम अपनी ज़रूरियात जो है, या कोई भी ऐसा वसाइल जिसकी वजह से हम अपनी ज़रूरियात जो अपनी नीड्स जो है वो हम फुलफिल कर सकते हैं, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन. एनीथिंग विच सेटिस्फाइज आवर नीड्स, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं. तो इससे पहले मैंने जो बताया आपको कि अगर हम सराउंडिंग्स में नज़र डालेंगे, इन एंड अराउंड सराउंडिंग, चाहे हम घर में देखेंगे, घर के बाहर देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पड़ी हैं जिनसे हम अपनी ज़रूरियात जो है वो हम पूरी कर सकते हैं, तो उनको हम रिसोर्स कह सकते हैं. तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें घर में भी है, घर के बाहर भी है, उनसे हम अपनी ज़रूरियात जो है वो हम पूरी कर सकते हैं, तो उनको हम रिसोर्स कह सकते हैं. सो एनीथिंग विच सेटिस्फाइज आवर नीड्स इज कॉल्ड ए रिसोर्स. सेकंड डेफिनेशन, रिसोर्स इज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग गिवन एंड्स. रिसोर्स जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ जो हमें कुछ एंड प्रोडक्ट देता है. वो एंड प्रोडक्ट क्या होता है?
इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कोई भी एक ऐसा फ़र्द जो है जब वो कोई चीज़ इस्तेमाल करता है, अगर उससे उसकी ज़रूरियात जो है वो पूरी होती है, वो उसकी विशेस जो है या नीड्स जो है वो फुलफिल होती है, तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। या हम ये कहेंगे कि उसकी जितनी भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल होती है, जैसे उसमें हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, या जितनी भी मतलब जो उसके मतलब जो लेवल्स होते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, फॉर द क्वालिटी लाइफ जो है वो पूरी करने के लिए जितनी भी चीज़ें उसको ज़रूरत होती है, अगर उनसे उनकी ज़रूरियात उन चीज़ों से जो वो अपनी सोसाइटी में इस्तेमाल कर रहा है, उनसे उसकी ज़रूरियात जो है वो पूरी हो रही है, सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है, तो उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। तो रिसोर्स क्या है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ अटेनिंग गिवन एंडज बीइंग दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑल अटेनमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू a resource man या रिसोर्स पर्सन हम कहेंगे डॉक्टर जिमरमैन। डॉक्टर जिमरमैन सेज मैन इज द मदर ऑफ ऑल रिसोर्स। मैन जो है एक ह्यूमन बीइंग जो है, ही इज द क्रिएटर, ही इज द मदर ऑफ ऑल रिसोर्स। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे मैन जो है वो कैसे क्रिएटर है, जितने भी रिसोर्स है उनका वो क्रिएटर है। बिकॉज जनरली मैं कहूँगा ही इज़ द he modifies all the resource, after that we can use them. Next definition that is also given by Dr. Zimmerman, resource does not refer to a thing, resource does not refer to a thing or substance। resource हम किसी ऐसी चीज़ या किसी substance को हम नहीं कह सकते, but to a function which a thing or substance performs। यानी हम ऐसे ही किसी चीज़ को या किसी सब्सटेंस को हम रिसोर्स नहीं कह सकते हैं जब तक ना वो कोई फंक्शन परफॉर्म करे। until and unless a thing it's provides service to a mankind, ठीक है, तब तक हम उसको रिसोर्स नहीं कह सकते। तो रिसोर्स क्या है? इट डज नॉट रिफर टू a थिंग और सब्सटेंस बट टू a फंक्शन। ये हम उस चीज़ की, उस सब्सटेंस की फंक्शन को हम रिसोर्स कह सकते हैं, विच ए थिंग और सब्सटेंस परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़, मतलब अगर आप हमारी अर्थ जो है, देयर इज़ लॉट ऑफ अबेंडेंस ऑफ स्टॉक, इसमें बहुत सारा स्टॉक जो है वो आपको मतलब अवेलेबल है इस हमारी अर्थ में, बट दैट इज़ ऑफ लिटिल इंटरेस्ट। वो मतलब पूरा उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। दैट इज़ ऑफ लिटिल इंटरेस्ट। ओनली दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इज काउंटेड एज रिसोर्स। सिर्फ वही कुछ हिस्सा उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं, दैट सर्व्स द मैनकाइंड, और दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द mankind, or we can say that is only that part is counted as a resource that gets interacted with the human beings, ठीक है। तो उसको हम रिसोर्स कहेंगे जब तक न इंसान, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, मैन इज द मदर ऑफ ऑल रिसोर्स। मैन जो है एक ह्यूमन बीइंग जो है वो क्रिएटर है, वो मॉडिफायर है। ही मॉडिफाइज द रिसोर्स, ही क्रिएट्स द रिसोर्स, ही शेप्स द रिसोर्स। यानी जितनी भी कुछ बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी है जो ज़मीन में है या ज़मीन के बाहर है, वो हम डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक न उनको मॉडिफाई किया जाए, जब तक न उनको पॉलिश किया जाए, जब तक न उनको मतलब उनकी मतलब शेप जो है वो चेंज की जाए, तब तक हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। यही वजह है कि रिसोर्स जो है, रिसोर्स हम उस चीज़ को नहीं कह सकते, बल्कि उसी चीज़ को कहेंगे जो हमें कुछ फ़ायदा दे, जिससे हमें कोई ज़रूरियात या जो हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करे, या जिससे हमारी ज़रूरियात जो है या सेटिस्फेक्शन जो है वो पूरी हो सके, तो उसको हम रिसोर्स कहेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, रिसोर्सेज और द एलिमेंट्स ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे है बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। रिसोर्स और द एलिमेंट्स ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स all the elements which are present in our physical as well as biological part of the earth. Physical and biological part. Living means resource or the elements of biophysical environment, which means the all the biotic and abiotic, all the biotic and abiotic uh, elements which are present on our earth, they are called resource. But they become resource only when humans preserve them. जब तक इंसान उनके साथ इंटरेक्ट हो, वो उनको प्रिजर्व करे, उसके बाद वो यूज़ करे, और यूज़ करने के बाद अगर उसको उसकी वो नीड्स जो है एक ह्यूमन बीइंग की वो सेटिस्फाई होती है, तो तभी हम उनको रिसोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे है एलिमेंट्स ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। बायोफिजिकल मीन्स दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ all the elements of physical and biological. The physical and biological part of the earth is called biophysical environment. ठीक है, physical means natural and biological means which are living. Physical means non-living. ठीक है, तो resource, these are the elements of biophysical environment, but they become only resource when humans preserve them and use them to satisfy his needs. तो यहाँ पे आपने देखी दो चार डेफिनेशन जो मैंने आपको डिफाइन की। पहली सिंपल डेफिनेशन, एनीथिंग विच सेटिस्फाइज आवर नीड्स। दूसरी जो मैंने बताई, रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें कोई एंड देता है, जिससे हमें कोई एंड, जिसका कोई एंड होता है। एंड मीन्स द सेटिस्फैक्शन। एक इंडिविजुअल जो है वो उससे इस्तिफादा, वो इससे सेटिस्फैक्शन जो है, ज़रूरियात जो है उसकी पूरी होती है, या सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उसकी फुलफिल होती है। इसी तरह डॉक्टर जिमरमैन जो है, उसने भी इसकी एक डेफिनेशन, मैन इज़ द मदर ऑफ ऑल रिसोर्स, या हम ये कहेंगे मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल resource. All resources, they are they have no value until and unless humans do not interact with these. ठीक है, जब तक एक ह्यूमन बीइंग जो है वो इस नेचर के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा, तब तक जितने भी इसमें मतलब सब्सटेंसेस है, जितनी भी चीज़ है हमारी ज़मीन के अंदर है या ज़मीन के बाहर है, वो तब तक बेकार है, वो यूजलेस है। दे आर they have no purpose, they have no value until and unless the humans do not intervene with them, until and unless humans do not interact with them. जब तक एक ह्यूमन बीइंग उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, नेचर के साथ डील करेगा, तब तक वो सारी चीज़ें जो है वो बेकार है, उनको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, ये दैट इज वाई जिमरमैन कॉल्ड मैन इज द मदर ऑफ ऑल रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बताया, इट डज नॉट रेफर resource does not refer to a thing or substance but to a function which a thing or substance performs। ठीक है, जब तक नहीं ये किसी ह्यूमन बीइंग को मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड करे वो कोई चीज़, तब तक हम उसको रिसोर्स नहीं कहेंगे। यूं ही हम किसी चीज़ को रिसोर्स नहीं कह सकते, बल्कि उसकी फंक्शन को, बल्कि उसकी यूटिलिटी को या यूजेबिलिटी को, यूजेबिलिटी, दैट इज़ व्हाट यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ऑफ रिसोर्स मेक्स a substance। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस मेक्स इट ए रिसोर्स। ठीक है, जब तक न वो कोई फ़ायदा दे, जब तक न वो एक इंसान को सर्व करे या उसको कोई मतलब उसकी वजह से उसकी ज़रूरियात पूरी हो सके, तब तक उसको रिसोर्स नहीं कह सकते। तो ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था डेफिनेशन इसके बारे में, डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे, मूविंग ऑन टू द टॉपिक जो हमारा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें अगर हम देखेंगे जो मैंने बताया, हमारा सराउंडिंग जो है, इसमें जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं इन एंड अराउंड द सराउंडिंग, चाहे हमारी ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के अंदर है, या हवा में है, पानी में है, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी इस सराउंडिंग्स में मौजूद है, उनको हम रिसोर्स कहेंगे।
ठीक है. So we can say everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as a resource. ठीक है. तो यहाँ पे एक मतलब डेफिनेशन है, कोई भी चीज़ जो हमारे इस इन्वायरमेंट में मौजूद है, कोई भी चीज़, हर एक वो चीज़ जो हमारे इस इन्वायरमेंट में मौजूद है, एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, और जिससे हमारी नीड्स जो है, जिससे हमारी वांट्स जो है, ज़रूरियात जो है वो हमें पूरी होती है या फुलफिल होती है, तो उनको हम रिसोर्स कहेंगे. ठीक है. इसके साथ साथ क्या हो, उसको हम तभी रिसोर्स कहेंगे प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, तभी हम उसको रिसोर्स कहेंगे. कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, उससे हमारी मतलब उससे हम कोई अपनी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई कर सकेंगे. और उसके साथ साथ वो एक्सेसिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी हम उसको रिसोर्स कहेंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देर आर सम टर्म्स. एक है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल? दे नीड टू बी एक्सप्लेन्ड. ठीक है. यहाँ पे पहले अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जैसा कि आपको मालूम है टेक्नोलॉजी जो है ये एक दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ऑफ आवर सोसाइटी. टेक्नोलॉजी जो है, इसी की वजह से हम कोई भी अपनी इकोनॉमी जो है वो हम शेप कर सकते हैं. ये एक बेसिक बिल्डिंग है हमारी सोसाइटी के लिए. टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल मीन्स दैट टेक्नोलॉजी शुड बी अवेलेबल टू अस. टेक्नोलॉजी जो है, हमारे पास टूल्स होने चाहिए, हमारे पास टेक्निक्स होने चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि हम कोई भी चीज़ जो है, ताकि हम कोई भी चीज़ जो हमारे इस एनवायरनमेंट में मौजूद है, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके उस टेक्नोलॉजी की वजह से. और जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद हम यूज़ कर सकेंगे, तो this is called technologically accessible. Means technology needed to use the resource must be available in our environment so that we can extract the resource and use them. That is technologically accessible. Next is economically feasible. Economically feasible means the advantages of something. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम रिसोर्स कहेंगे, दैट शुड बी इकोनॉमिकली फीजेबल. फीजेबल मीन्स समथिंग टू बी अचीव्ड और समथिंग टू बी मेड. उसकी जो एडवांटेज है, कोई भी चीज़ जो है उसकी इकोनॉमिक एडवांटेज जो है वो इकोनॉमिक कॉस्ट से ज़्यादा हो. ठीक है. इकोनॉमिक एडवांटेज जो है वो इकोनॉमिक एडवांटेज जो है, यानी मतलब कोई भी चीज़ जो है उसका फ़ायदा जो है, उसका पर्पस जो है वो किससे ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक कॉस्ट से. उसको हम कहेंगे इकोनॉमिकली फीजेबल. या हम ये कहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ उसके बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए. दैट इज़ इकोनॉमिकली feasible. Or in simple language, we can say we should have enough money. We should have enough money. हमारे पास मतलब बहुत सारा पैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ताकि हम कोई भी मतलब ताकि हम टेक्नोलॉजी जो है वो हम यूटिलाइज कर सकेंगे. किसके लिए? किसी मिनरल को, किसी भी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी होना चाहिए. या इसके कोई भी रिसोर्स जो है, इसके फ़ायदे जो है, इसके एडवांटेजेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकली फीजेबल. एक और डेफिनेशन है इकोनॉमिकली फीजेबल की, कि कोई भी चीज़
जो है उसके इट शुड बेनिफिट बोथ द प्रोड्यूसर एज वेल एज यूज़र। जो प्रोड्यूसर हो उस चीज़ का निकालने वाला, या यूज़र जो उसको इस्तेमाल करने वाला हो, दोनों को फ़ायदा पहुँचे, प्रोड्यूसर को भी और यूज़र को भी। पैदावार जो निकालता हो या जो खाने वाला हो, बायर होगा या यूज़र होगा, दोनों को फ़ायदा पहुँचे, तो हम उसको कहेंगे इकोनॉमिकली फीजेबल। ठीक है। इकोनॉमिकली फीजेबल मीन्स समथिंग, द एडवांटेजेस ऑफ समथिंग और ग्रेटर दैन द इकोनॉमिक कॉस्ट। या हम ये कहेंगे द बेनिफिट्स ऑफ एनीथिंग शुड बी reaped by masses, masses means large people। या हम ये कहेंगे economically feasible means we should have enough money to extract it and use it, or it should benefit both the producer and user, that is economically feasible। यानी कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज़ करने के लिए। इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजेबल। इकोनॉमिकली फीजेबल मीन जो चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट की उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए, या उसका फ़ायदा जो है उस चीज़ का, उस रिसोर्स का एडवांटेज जो है वो किससे ज़्यादा हो, इकोनॉमिक कॉस्ट से, यानी जो उस पर खर्चा आता हो उससे ज़्यादा उसके एडवांटेजेस होने चाहिए। यानी जितना भी खर्चा उस पर आता है, इकोनॉमिक कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग। ठीक है। और इसके बाद है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल लास्ट पे क्या आता है, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल, यानी लोग जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल। इट शुड नॉट डिस्टर्ब और हर्ट देयर सेंटिमेंट्स। ये लोगों के सेंटिमेंट्स जो है, या उनके मतलब उनके कल्चर को, मतलब कोई, मतलब उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स लोग जो है या पीपल जो है दे शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है। it should not harm or it should not hurt their sentiments, their culture, their surrounding, their language, their tradition, their religion, values। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करेंगे, इट शुड बी अलाउड इन आवर सोसाइटी, इट शुड बी practiced and observed without any hindrance, without any objection by people। ठीक है। तो यहाँ तक